Hello everyone, in this video we will discuss one of the important topic of class 10 science, isomers, that is from the carbon and its compound. Now what type of a questions can be framed in the exam, and after watching video what are the questions you are able to answer? So after watching this video you are able to answer define isomers, define isomerism, define structural isomers, and in saturated hydrocarbon, specifically alkane, how many carbon atom required to show isomerism? Draw the isomers of butane, draw the isomers of pentane, and what is the relation between alkene and alkane? So we will first start with isomers. So isomers, specifically structural isomers, are the organic compound having same molecular formula but different structures are called isomers, and this phenomena is known as isomerism. So again I am repeating, organic compound जिनका molecular formula same है but structure different है, they are called as isomers, and इस phenomena को हम क्या बोलते हैं? Isomerism. In higher classes you will just learn isomerism itself is a very vast topic, and the detail you will going to learn in your class 11th, but in class 10th we will just learn some specific definition related to it. Now one of the important point, in alkane how many minimum carbon is required to show the isomerism? So answer here is more than 3 carbon, which means methane, ethane, propane will not show any isomerism, but yes, if it is a 4 carbon atom it will show isomerism. So for class 10th the important question here is draw the isomers of butane, that is C4H10. So first method is to just write 4 carbon atom in a straight line, 1, 2, 3, 4. Then just complete the valency by attaching here 3, here 2 carbon, because 1, 2, 3, 4. So at each carbon there must be a 4 bonds. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Again here 2, and in the end here 1. So 1, 2, 3, 4. So now formula here is 1, 2, 3, 4, C4H10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now if we have to write its isomer, so the first step is to write a chain length of 1 carbon less than the initial one. तो अभी हमारे पास 4 कार्बन की चेन थी, तो अब हम 3 कार्बन की चेन लिखेंगे यहाँ पे. चेन मतलब स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, 1, 2 एंड 3. अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमें 4th कार्बन है वो कहाँ नहीं लगाना है. इन 2 कार्बन जो इसको हम टर्मिनल बोलते हैं, एंड के कार्बन पे हम कार्बन नहीं लगाएंगे. इसका क्या मीनिंग है? अगर मैं यहाँ पे कार्बन लगाती हूँ तो ये अगेन एक स्ट्रेट लाइन है, कर्व हो गई है बट इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे कार्बन लगा दिया तब भी ये स्ट्रेट है, तो ब्रांचिंग नहीं हुई. और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए देयर मस्ट बी ब्रांच. तो अब ऑप्शन क्या है? दैट द 3rd कार्बन वी हैव टू राइट अदर देन द टर्मिनल वन. तो अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो जो मुझे तीसरा यहाँ पे अटैच करना है कार्बन, यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना, ऊपर नीचे आप कहीं पे भी कर सकते हैं, एक ही बात है. सो नाउ द कार्बन इज एट द सेंटर. नाउ जस्ट अटैच हाइड्रोजन हेयर, 1, 2, 3, 4. 1 ही होगा, ऑलरेडी 4 बॉन्ड है. 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे. ओवरऑल हमें ये देखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए. हेयर इट इज कार्बन 1, 2, 3, 4. So these 2 are the structures which can be possible for butane. One is the straight chain and other is the branch chain. अब जो ब्रांच है, ब्रांच कभी भी फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे नहीं बनेगी, अदर देन फर्स्ट और लास्ट बनेगी. इनको हम टर्मिनल कार्बन भी बोलते हैं. तो अगर ये 3 मार्क का और 2 मार्क का क्वेश्चन आता है देन जस्ट यू हैव टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर लाइक दिस. ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. तो हेयर फॉर्मूला इज C4H10. सो ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. Now name is butane and common name here is N-butane. N means a straight chain. Similarly, its branch structure will be 1, 2, 3 कार्बन. अब एक कार्बन आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ऊपर या नीचे. अब जो इसका नाम होगा, ये जो ग्रुप होता है CH3, इसको हम बोलते हैं मिथाइल. अब ये कौन सी पोजीशन पे है? 1, 2. तो सेकेंड पोजीशन पे, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल. और जितने कार्बन की चेन है 1, 2, 3 प्रोपेन.
ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर आपने ऑलरेडी कार्बन कंपाउंड्स में किया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं यहाँ पे सिंपल वे आपको बता रही हूँ। जो 4 कार्बन होते हैं वो ब्यूटेन होता है, 3 कार्बन इज प्रोपेन, तो लॉन्गेस्ट को हम पेरेंट मानेंगे विच इज प्रोपेन हेयर। तो नाउ नेम विल बी 2 मिथाइल। अब मिथाइल किसको बोला हमने, अगर ये 1 कार्बन है तो मीथेन से मिथाइल हो गया, अगर 2 कार्बन है CH2 तो इथेन से इथाइल हो जाता है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसका कॉमन नेम ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, आइजो वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जब हमें आइजोमर बनाने हैं ब्यूटेन के तो 2 ही पॉसिबल हैं, वन इज ब्यूटेन एंड अदर वन इज 2 मिथाइल प्रोपेन। Now next question here is draw the isomer of pentane. So in the similar way we have drawn for the butane, we will draw for pentane. So what is the formula for pentane? It is C5, 5 का डबल 10, 10 plus 2 12. तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2. तो C5H10 plus 2 H12. अब इसके लिए 5 कार्बन हम लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ गए, ठीक है। अब हमें 12 हाइड्रोजन अटैच करने हैं। सो इन स्ट्रेट चेन कार्बन पे हमें 12 हाइड्रोजन अटैच करने हैं। एवरी कार्बन हैज अ 4 बॉन्ड, 1 2 3 4. सो अब एट ईच एंड आई विल राइट दिस H, हेयर H, सेंटर पे 2 आएंगे यहाँ पे, अगेन यहाँ पे 2, और टर्मिनल पे एंड पे 3 कार्बन आएंगे, तो ऑल टुगेदर टोटल 12 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी का हमें ब्रांच चेन अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो लेस देन 5 आई विल राइट 4 कार्बन हेयर, 1 2 3 4. अब कहाँ नहीं लगाना है, अभी हमने ब्यूटेन में किया, यहाँ और यहाँ नहीं लगाना है, तो अब जो नेक्स्ट कार्बन आएगा वो यहाँ लगा सकते हैं। नाउ अगेन वी हैव टू अटैच हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड एट ईच कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो 1 2 3, ठीक है। जैसे ये ब्यूटेन हुआ, ये पेंटेन हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, क्योंकि 2 पे क्या है, कार्बन ग्रुप है, तो इट इज़ 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर मैं इसको इस तरह से लिखती 1 2 3 4, और अब अगर मैं मिथाइल ग्रुप जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन लगाती, ये और ये स्ट्रक्चर सेम है। रीज़न, जो ये मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, ये सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है, और इस केस में भी ये सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है। दैट इज़ वाई ये स्ट्रक्चर लिखें या ये लिखें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो पहला आइसोमर हो गया स्ट्रेट चेन, सेकेंड आइसोमर ब्रांच। अब इसको हम फर्दर ब्रांच और कैसे कर सकते हैं, अगेन वी कैन राइट अ 3 कार्बन चेन हेयर, 1 2 3, और अब हमें टोटल 5 कार्बन चेन बनानी थी, तो 3 तो लग गए, अब 2 और लगाने हैं, तो यहाँ और यहाँ नहीं लगेंगे, इट विल बी लाइक दिस, हेयर एंड हेयर, ठीक है। अब सब पे हाइड्रोजन लगा देंगे, हर एक पे एक बॉन्ड है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे नहीं लिख सकते, देखो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे लिख सकते हैं और कैसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3, अब अगर मैं यहाँ पे दोनों कार्बन एक ही कार्बन पे लगा दूँ तो ये अगेन 2 मिथाइल ब्यूटेन वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक कार्बन नीचे और एक कार्बन ऊपर की तरफ लगाना है। सो बाय दिस वी कंक्लूड कि ब्यूटेन के 3 स्ट्रक्चर बनते हैं आइसोमर, दैट इज पेंटेन, जहाँ वो स्ट्रेट चेन है जिसको हम एन पेंटेन बोलेंगे, देन 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन जिसको हम आइसो पेंटेन बोलते हैं। आइसो वर्ड जब भी हम यूज़ करेंगे, एन आइसो, तो इसमें जितने कार्बन होते हैं उसी का पेरेंट का नाम जाता है। तो अगर यहाँ पे 5 कार्बन है तो पेंटेन हुए, ब्यूटेन में 4 कार्बन थे टोटल में, तो आइसो ब्यूटेन हुआ। बट जब हम आयुपैक लिखते हैं तब हम स्ट्रेट चेन देखते हैं, बिगर चेन। तो यहाँ बिगर चेन 4 कार्बन की है जिसमें सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप है, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। जो थर्ड स्ट्रक्चर है, हम 3 कार्बन की चेन लिखी, सेकेंड पे ऊपर और नीचे मिथाइल लगाया, तो 1 2, 2 पे एक मिथाइल, 2 पे एक और मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, जिसे हम नियोपेंटेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, वेयर वी हैव टू ड्रॉ the isomers of pentane. Now the next question here is what is the relation between alkene and the cycloalkane? देखो एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, साइक्लोएल्केन का भी जनरल फार्मूला है CnH2n,
बट एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और साइक्लो में क्लोज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. तो वी कैन से एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन आर फंक्शनल आइसोमर. फंक्शनल क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है और स्ट्रक्चर के साथ उनका फंक्शन भी डिफरेंट हो जाएगा. ये अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड है. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 3 कार्बन का, जैसे मैंने लिया साइक्लोप्रोपेन और वी कैन से प्रोपीन. तो 3 कार्बन हुए, ठीक है. एंड दिस वन इज, so these are the question I think you are able to answer now. The first one here is define isomerism. Then structural isomerism or isomer are the same thing because they have the same molecular formula and different structure, whereas this alkene and alkane are the functional isomer because they have different function, having same molecular formula but different structure and function, so they comes under the category of functional isomers. Draw isomer of pentane. You can easily draw. There are 3 isomer possible. Isomer of butane. This can be also be an MCQ. How many isomer of pentane can be possible? 3, then 2 here. And how many carbon required to show the isomerism? Minimum 3 carbon is required in case of alkane.